So hi everyone, this is our second video of economics, and the chapter that we are dealing with right now is utility analysis. Okay, that's our second chapter, and in the previous video we already saw what utility is. So utility क्या होती है? The want satisfying power of a commodity is utility. तो हमने ये देखा था that सारे commodities के पास कोई ना कोई powers होती है जो हमें help करती है हमारे wants को satisfy करने के लिए. They are similar to like Superman and Spider-Man in our life. They help us in every situation that we go into, और फिर वो हमारे सारे wants को satisfy कर लेते हैं. Okay? फिर हमने देखा था what are different types और उसके characteristic features क्या होते हैं. Okay? So today in this particular video we are going to start with a new topic, that is the law of marginal utility. Okay? The law of diminishing marginal utility के क्या होता है diminishing marginal utility, वो हम पढ़ेंगे systematically in this particular video. It's given on your page number 12 of your textbook of Maharashtra Board HSC. So if you have that textbook, for example, then you can just open it and you can go through it as well. Okay. So the law of diminishing marginal utility was proposed by Mr. Gaussen. Okay, the spelling is Gaussen. Okay, उन्होंने propose किया था, but later on it was detailedly explained. इस topic को पूरा detailedly explain किसने किया था? Professor Alfred Marshall ने. Okay. So according to Professor Alfred Marshall, हम लोग पहले उसका definition देखेंगे, and then I'm going to explain you what exactly the concept is. Okay? So हमारे भाई साहब Professor Alfred Marshall कहना चाहते हैं that every additional unit that you consume, हम जो additional unit consume करेंगे ना, उससे क्या होगा? हमारा marginal utility कम होते जाएगा. So every additional unit that a person already consumes, तो उससे क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी. हमने कल एक एग्जांपल दिया था, इन द प्रीवियस वीडियो हमने एक एग्जांपल दिया था दैट आई वांटेड टू गो टू एसएल वर्ल्ड. सो पापा मुझे क्या लेके गए? एसएल वर्ल्ड लेके गए. तो इन द वेरी फर्स्ट टाइम आई वेंट टू एसएल वर्ल्ड, मुझे बहुत मजा आया. आई एंजॉयड अ लॉट. सुपर्ब. ओके, सो मुझे सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी मिली. फिर कुछ दिनों के बाद पापा फिर से एसएल वर्ल्ड लेके गए. अब दूसरी बार गया तो ऑब्वियसली उतनी मजा तो नहीं आएगी. फिर पापा फिर से लेके गए. तीसरी बार गए तो अब तो मेरा मन ही उड़ गया. चौथी बार गए तो कुछ मजा ही नहीं आ रही थी, थोड़ा एकदम. ओके, पांचवी बार भी एसएल वर्ल्ड गए, और छठी बार तो जब एसएल वर्ल्ड गए ना तो खत्म ही था. मतलब लिटरली वी डिड नॉट एंजॉय इवन अ सिंगल सेकेंड. और सातवीं बार गए तो इनफैक्ट नेगेटिव, पैसे वेस्ट हो गए, बर्बाद हो गए पैसे, कुछ मतलब ही नहीं हुआ. ओके, सो सिमिलरली इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो, इफ आई एम सिटिंग राइट नाउ एंड ईटिंग 7 मैंगोज एट अ टाइम, तो ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट मैंगो में सबसे ज्यादा मजा आएगी. But as and when I will keep consuming more and more mango, the utility will keeps decreasing. एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं कंटाल जाऊंगा, पूरा का पूरा कंटाल जाऊंगा, एंड फाइनली क्या होगा? उल्टी होने के भी चांस है लास्ट में, तो इतना अगर खा लिया तो. ओके, सो इफ यू सी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, the first unit, whenever you're going to have your first unit, okay, मैं first बार कहाँ गया था? इमेजिका गया था. okay, इमेजिका. okay, तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आई. सुपर, सब राइड से मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया. तो whenever you consume any unit for the very first time, your marginal utility is always the highest. And then as and when you keep consuming more and more, the marginal utility keep decreasing. इसको हम क्या बोलते हैं? Marginal utility curve, which slopes downward from left to right. तो ये left to right, obviously lefty ज्यादा smart होता है. Okay, इसीलिए from left to right and it goes downward sloping. कौन है downward? Marginal utility curve है downward sloping from left to right, which you have to remember. So whenever your marginal utility is 0, that is your point of satiety. हमने कल भी लिखा था point of maximum satisfaction. Okay, this point when you come on 0, your marginal utility 0, बस उससे ज्यादा अब तुम लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता. अब उससे आगे तुम लोग को जरा भी मजा नहीं आने वाली. जितना भी मजा आना था वो सब आ चुका है. एंड आफ्टर दैट तुम लोग ने अगर एक और यूनिट कंज्यूम किया तो अब तो क्या होगा? नेगेटिव यूटिलिटी. नेगेटिव मतलब डिसयूटिलिटी. मजा तो छोड़ो, इनफैक्ट सजा मिल गई, ऐसा लगेगा तुम्हें सजा मिल रही है. ओके, सो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी. So 3 points that you have to remember. First unit, maximum marginal utility. When your marginality reaches to 0, that is your point of satiety.
पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसके आगे जरा भी मजा नहीं आने वाली। एंड पॉइंट नंबर थ्री, आफ्टर दैट इफ यू हैव वन मोर यूनिट, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा डिस यूटिलिटी हो जाएगा। अब तुमको नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। दैट मीन्स मजा तो छोड़ो, अब सजा मिलने लग गई है, ऐसा लगेगा। फिर पापा अगर एक और बार एसएल वर्ल्ड लेके गए तो उसको मजा नहीं बोलेंगे, ऐसे पापा सजा दे रहे हमको, मस्ती की, चलो एसएल वर्ल्ड लेके जाऊंगा तुम्हें। ओके, सो दैट डजंट सीम लाइक enjoying, that would rather be like we are not enjoying at all. Okay, so this is what the entire law of diminishing marginal utility says. मतलब हमारा marginal utility diminish होते ही जाएगा। Okay, so now to prove this entire law, okay, we call this as a law, a theory. अगर इसको मुझे prove करना है, right, तो मुझे कुछ ना कुछ assumptions लगाने होंगे। मुझे क्या होगा, कुछ ना कुछ assumptions लगाने होंगे। and to prove those, ये अगर assumptions को मैं assume करूंगा, okay, तो ही मेरा क्या होगा, मेरा लॉ विल बी होल्ड राइट, अदरवाइज इट वोंट बी होल्ड राइट। तो हम असम्पशन से शुरू करेंगे। आई टेक अनदर कलर ऑफ मार्कर, या सो आई हैव अ रेड कलर मार्कर। तो द फर्स्ट थिंग, रैशनैलिटी। ओके, हम अज्यूम करेंगे कि जो भी ये लॉ को फील कर रहा है, ओके, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पीपल विल फील द एग्जैक्ट सेम थिंग। ओके, तो हम अज्यूम करेंगे जिसके ऊपर हमने ये लॉ अप्लाई किया है वो एक रैशनल इंसान है। रैशनल मतलब हु हैज द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कोई पागल इंसान नहीं होना चाहिए। ओके, समवन शुड नॉट बी इररेशनल। ओके, अगर पागल इंसान को बिठा दिया ना 7 मैंगो खाने के लिए, वो पागल तो खाते जाएगा। ओके, उसको 7वें मैंगो में भी मजा आएगी, यू नेवर नो। ओके, बिकॉज इज मैड। सो हम फर्स्ट assumption ऑफ दिस लॉ इज रैशनैलिटी। एनी पर्सन ऑन whom this entire law is been applied, वो इंसान कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, हु हैज द बेटर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कंसेप्ट ऑफ लॉ, और जिसको वो खाने पीने की चीज या जिसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। ओके, कार्डिनल मेजरमेंट हमने पहले ही देखा था, दैट ऑब्वियसली यूटिलिटी इज समथिंग दैट यू फील। ओके, यू स्मोक अ सिगरेट एंड यू एंजॉय, ओके, यू ड्रिंक सम वाइन एंड यू एंजॉय, ओके, तुम लोग उसको कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। टू बी इन रियल लाइफ यू कैन नॉट डू दैट। सपोजिंग फॉर एग्जांपल एक सुट्टा मार दिया एंड देन यू आस्क मी कितना मजा आया, अरे मुझे तो 10 मजा आया, मुझे 20 मजा आया। कैन आई से दैट? ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से दैट। ओके, टू बी रियल फ्रैंक, यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इट कैन ओनली फेल्ट। ओके, फील हो सकता है बहुत मजा आई या बहुत कम मजा आई। ओके, इट कैन ओनली बी फेल्ट बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं दैट कार्डिनली मेजरमेंट हो सकता है यूटिलिटी का। ओके, सो दैट इज आल्सो पॉइंट नंबर 2। गोइंग नंबर पॉइंट नंबर 3, होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएल वर्ल्ड, तो एसएल वर्ल्ड जितनी बार मैं एसएल वर्ल्ड जाऊंगा 6 से 7 बार, एकदम प्रॉपर सेम राइड्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई नई राइड्स आ गई या कुछ नया एंटरटेनमेंट मिल गया, वैसा नहीं होना चाहिए। वी अज्यूम, सपोजिंग इफ आई एम ईटिंग 7 मैंगोज, ऑल द 7 मैंगोज शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम, एकदम सेम होने चाहिए, उनका शेप, साइज वगैरह सब कुछ क्या होना चाहिए, टेस्ट भी सेम होना चाहिए। समझो मैंने फर्स्ट मैंगो खाया बट कड़वा निकला, एकदम कड़वा, तो मुझे फर्स्ट वाले में ही मुझे क्या होगा, नेगेटिव यूटिलिटी मिल जाएगी। समझो सेकंड खाया उसमें बहुत टेस्टी, तो क्या हो जाएगा, उसमें सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी मिल जाएगी। तो हमारा लॉ पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जब हम लॉ अप्लाई करेंगे, ऑल दिस 7 यूनिट शुड बी इक्वल, होमोजीनियस। गोइंग विद द फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूटी। लुक, कंटिन्यूटी का मतलब है दैट व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग दिस लॉ, आई हैव टू कंज्यूम द प्रोडक्ट वन आफ्टर द अनदर। मतलब अभी मुझे 7 मैंगो एक साथ में खाना है। समझो आज मैंने 2 मैंगो खाया, तीसरा मैंगो मैंने 3 दिन के बाद खाया, चौथा मैंगो मैंने 7 दिन कुछ नहीं खाया उसके बाद खाया, 5वां 6वां मैंगो तो मैंने मांस खमन कर लिया, मैंने 30 दिन उपवास किया उसके बाद खाया। तो ऑब्वियसली हर बार अगर मैं इतना बड़ा गैप लूंगा तो हो सकता है माई लॉ विल नॉट अप्लाई फाइन, बिकॉज फर्स्ट वाले में भी यूटिलिटी मिलेगी, सेकंड थर्ड में भी यूटिलिटी मिलेगी, थर्ड फोर्थ समझो 28 करने के बाद खाया था तो और ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, और ये 5th 6th वाला तो मैंने मांस खमन के बाद खाया था, उसमें तो और ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ओके, दैट इज 30 उपवास करने के बाद मैंने खाया तो फिर ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ओके, सो दैट इज व्हाई द लॉ सेज it assumes that whenever I'm going to apply my law,
the consumption of that particular product should be one after another, one after another, one after another, एक के बाद एक. Okay. Next is reasonability, reasonable. Okay. Reasonability का मतलब ये है कि जो हम चीज खा रहे हैं ना वो reasonable size होना चाहिए. Okay. Reasonable मतलब समझो मैं 7 मैंगो लेके बैठा हूं, 1 2 3 4 5 6 7. That is reasonable size. I can have one mango, then second mango, then third mango. समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं 7 वाटरमेलन लेके बैठा हूं, इतना बड़ा वाटरमेलन, फिर दूसरा इतना बड़ा वाटरमेलन, थर्ड इतना बड़ा वाटरमेलन. टेल मी क्या मैं 7 कंज्यूम भी कर पाऊंगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट. मैं रहूंगा तो मैं एक ही वाटरमेलन में खत्म. फर्स्ट वाटरमेलन के एंड तक ही मेरा तो यूटिलिटी 0 हो जाएगा. ओके, सो आई हैव टू अप्लाई द लॉ ऑन समथिंग विच इज वेरी रीजनेबल. ओके, समथिंग वेरी रीजनेबल. तो अगर मेरा रीजनेबल, मेरा जो मतलब कहना है इसे रीजनेबल का मतलब है कि उसका जो साइज रहेगा वो रीजनेबल होना चाहिए. सो दैट समझो, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. सपोजिंग फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स कड़ी धूप में. फिर मैं घर आया और मम्मी को बोला मम्मी पानी दो. मम्मी ने मुझे अ स्पूनफुल ऑफ वाटर दिया, एक चम्मच पानी दिया, एक चम्मच पानी. मैंने एक चम्मच पानी पिया. क्या मुझे यूटिलिटी मिली? कुछ नहीं मिली. फिर मम्मा ने बोला एक और चम्मच ले ले बेटा. मैंने एक और चम्मच लिया, कुछ यूटिलिटी नहीं मिली. फिर थर्ड मम्मा ने एक ग्लास दिया मुझे पूरा भर के, फिर मैंने थर्ड ग्लास पिया. ओके, अब मुझे यूटिलिटी मिली. तो फर्स्ट वाले में यूटिलिटी नहीं मिली, सेकेंड वाले में यूटिलिटी मिली, थर्ड में सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल गई, है ना. तो माई साइज शुड बी रीजनेबल. रीजनेबल मतलब एकदम भी छोटा नहीं होना चाहिए और एकदम भी बड़ा नहीं होना चाहिए. ओके, इट शुड बी समथिंग रीजनेबल. Next 6 point is constancy. Okay, so if you see all this point, continuity में भी one after another था, constancy. Okay, just give me a second. I'll get something. Yes, I got my scale. So yes, let's start. Next is we have constancy. The law assumes that the entire time that the law has been applied, everything else should be constant. What is everything else? जैसे मेरा टेस्ट, मेरा प्रेफरेंस, my habits, my likes, my dislikes, everything has to be constant throughout the time. Okay, let's assume अगर constant नहीं हुआ. Okay, let's assume constant नहीं हुआ. Okay, for example, सबसे पहले मुझे धोती बहुत पसंद थी तो मैं धोती पहन रहा था, फिर सेकेंड टाइम भी धोती पहन रहा था. पर अब अचानक क्या हो गया? टोन जींस, क्या हो गया? टोन जींस आ गए ट्रेंड में. तो अब मुझे धोती पहनना जरा भी पसंद नहीं आया और थर्ड वाले भी मुझे नेगेटिव यूटिलिटी मिल गई. सो थ्रू आउट द टाइम दैट आई एम अप्लाइंग दिस लॉ, माय लाइक्स, माय हैबिट्स शुड बी सिमिलर, फैशन शुड बी सिमिलर. फैशन भी चेंज नहीं होना चाहिए इन द सोसाइटी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इनकम चेंज हो गया, पहले मैं एसएल वर्ल्ड गया था, मुझे मजा आई, बट अचानक से मुझे लॉटरी लग गई, अब मैं करोड़पति बन गया. तो जब मैं सेकंड टाइम एसएल वर्ल्ड जाऊंगा तो ही मुझे मजा नहीं आएगी, अब मुझे यूरोप जाने की इच्छा हो गई है, बिकॉज नाउ आई एम करोड़पति. ओके, सो द लॉ assumes that throughout the time that I am going to apply this law, everything should be constant. My habits, my incomes, my likes, dislikes, everything should be constant. जैसे फॉर एग्जाम्पल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना, हम किसकी बात करें? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट. क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोग, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत कम होती है, उनको पैसों की इतनी परवाह भी नहीं होती है. ओके, 5, 10, 500 का नोट गिर गया ना तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल पुअर लोग जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत हाई होती है. 10 रुपए भी किसी ने दे दिए ना तो वो लोग एकदम खुश हो जाते हैं. तो पुअर लोग के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वेरी हाई, बट फॉर रिच पीपल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वेरी लो. बट लॉ क्या अज्यूम करेगा कि यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है. लॉ अज्यूम ये करेगा कि फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जब हम ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं, नथिंग इज चेंजिंग. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी. अब हम आए डिविजिबिलिटी का मतलब है द एंटायर थिंग जिसके ऊपर हम ये अप्लाई कर रहे हैं लॉ, इट शुड बी डिविजिबल. फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग इफ आई गो टू बाय अ टीवी, डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो एंड बाय 7 टीवी एट अ टाइम? मुझे लॉ चेक करना है. चलो मैं 7 टीवी लेके आऊंगा. क्या मैं पागल हूं 7 टीवी लेकर आऊंगा? मैं 7 रेफ्रिजरेटर लेकर आ गया, मैं 7 घर खरीदूंगा, मुझे लॉ अप्लाई करना है. एम आई गोइंग टू डू दैट? ऑफ कोर्स नॉट. ओके,
तो ऑब्वियसली कोई इतना इंसान पागल तो नहीं होगा वो 7 चीजें खरीदेगा। तो लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन दोज गुड्स विच कैन बी डिविजिबल। जैसे मैंगो हो गए, एप्पल हो गए, बनाना हो गए, हाँ मैं 7 मैंगो खरीद सकता हूँ, मैं 7 एप्पल भी खरीद सकता हूँ, ओके। बट समथिंग विच कैन नॉट बी डिविजिबल, ये लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो दैट इज वाई अजम्पशन क्या बोलता है, दैट द गुड्स शुड बी डिविजिबल, ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर द टाइमिंग विल अज्यूम्ड दैट इट इज डिविजिबल। ये हम अप्लाई कर रहे हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं। एंड गोइंग टू द लास्ट वन, सिंगल बॉन्ड। द लॉ ऑल्सो अज्यूम दैट फॉर द टाइमिंग मैं सिर्फ किसी एक के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा, सिंगल बॉन्ड, दैट इज ओनली मैंगोज। अगर मैं 7 मैंगो खाऊंगा तो ही ये लॉ अप्लाई होगा। समझो फॉर एग्जांपल मैंने 1 मैंगो खाया, 2 मैंगो खाया, 3 मैंगो खाया, 4 मैंगो खाया, 5 मैंगो खाया, ओके, पर छठा मैंने एप्पल खाया, तो हो सकता है मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिले। तो 6th यूनिट पे अचानक से मेरी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज यहाँ पे मैंने मैंगो की जगह एप्पल खाया है। मैं मैंगो खा खा के कंटाल गया था, अचानक से एप्पल खाया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ओके, मुझे थोड़ा बेटर लगा। तो क्या होगा, इफ आई चेंज द प्रोडक्ट इन द मिडल ऑफ द लॉ विल नॉट अप्लाई गुड, ओके। दैट इज व्हाई इट इज अज्यूम्ड दैट राइट नाउ जिसके ऊपर भी लॉ अप्लाई करेंगे इट विल बी सिंगल बॉन्ड, ओके। पापा फर्स्ट टाइम एसएल वर्ड लेके गए, सेकंड टाइम एसएल वर्ड लेके गए, थर्ड टाइम एसएल वर्ड लेके गए, फोर्थ टाइम एसएल वर्ड लेके गए, तो मेरा यूटिलिटी कम हो गया। लेकिन 5th टाइम पापा इमेजिका लेके चले गए, इमेजिका, ओके, तो मुझे बहुत मजा आ गई, अच्छा से यूटिलिटी बढ़ गई, ओके। सो अगर ये सिंगल बॉन्ड नहीं हुआ देन माय लॉ विल नॉट अप्लाई गुड, लॉ रॉन्ग हो जाएगा। तो लॉ को राइट करने के लिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम ये कर रहे हैं दैट फिलहाल क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल भाई ने हमें यह बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे। बट इस लॉ को सही करने के लिए, सही मानने के लिए ये सारे अजम्पशंस को होना आवश्यक है, अनिवार्य है, ओके। So this entire part in your exam till here comes for 10 marks of your answer. In your board exam it comes for 10 marks. And then we have a different question on our page number 13, that is exception to the law. अब exceptions हमें क्या बताएंगे? Exceptions हमें ये बताने वाले हैं कि ये जो law है ना, इन चीजों पे अप्लाई नहीं होता। ये जो law है, ये सारी चीजें इन सारी चीजों पे अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, आइए देखते हैं। So first is exceptions to the law of diminishing marginal utility. Okay, what are the exceptions of law of diminishing marginal utility? It's given on page number 13. First is hobbies. Hobbies का कैसा है ना, जैसे what can be the hobbies? Hobbies can be reading, stamps collect करना, paint करना, cricket खेलना. For me, taking a lecture is my hobby. So अगर मैं 10 लेक्चर, 20 लेक्चर, 30 लेक्चर भी ले लूँ ना, मेरी यूटिलिटी कभी कम नहीं होती, जितने ज्यादा लेक्चर्स ले रहा हूं उतना ज्यादा मजा आ रहा है, है ना। सो व्हाट इज माई हॉबी इज विल डिपेंड, और वो हॉबी के ऊपर क्या होगा, कभी भी मैं जो हॉबी ले रहा हूं, जो मेरी हॉबी होगी उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो कहना से ये जो चीजें हैं इनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता जरा भी, ओके। अब उन्होंने क्या बोला है, अगर लेकिन ये हॉबी कौन से अजम्पशन को तोड़ रही है, कौन से अजम्पशंस को तोड़ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंसान की हॉबीज होती है ना, हॉबीज, तो दे कंसीडर दैट पर्सन कि वो इंसान क्या कर रहा है, होमोजिनिटी नहीं है। मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली जब मैं लेक्चर ले रहा हूं, मेरी हॉबी है लेक्चर लेना, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द सेम लेक्चर अगेन एंड अगेन। मैं क्या कर रहा हूं, हर बार अलग अलग चीजें पढ़ा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी है पेंट करना, तो मैं एक ही चीज पे पेंट नहीं करूंगा, मैं हर बार अलग अलग चीजें पेंट करूंगा। मेरी हॉबी है कॉइन कलेक्ट करना, तो मैं अलग अलग काइंड के कॉइन कलेक्ट करूंगा। मेरी हॉबी है करेंसी कलेक्ट करना, तो मैं अलग अलग कंट्रीज के करेंसी कलेक्ट करूंगा। मेरी हॉबी है गाना सुनना, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू लिसन टू डिफरेंट सॉन्ग्स, मैं अलग अलग प्लेलिस्ट लगाऊंगा। सो एक्सेप्शन, हॉबी वाला एक्सेप्शन क्या बोलता है कि ये जो होमोजिनिटी है ना, अजम्पशन, वो तुम उसको तोड़ रहे हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। द एक्सेप्शन ऑफ हॉबीज डज नॉट अप्लाई बिकॉज वो कौन से अजम्पशन को तोड़ रहा है, होमोजिनिटी को तोड़ रहा है, ओके। नेक्स्ट, माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस। अब जो कंजूस लोग होते हैं ना, उनके लिए लॉ अप्लाई नहीं होता। कंजूस लोग इतने कंजूस होते हैं ना, वो हर जगह अपने पैसे को वसूल करने निकलते हैं, करने निकलते हैं। अगर उनको 10 मैंगो भी दे दिया ना,
तो भाई साहब 10 मैंगो भी खुशी खुशी खाएगा, क्योंकि उसको अपना पैसा वसूल करना ही करना है। अगर उसको 10 बार एसएल वर्ल्ड भी लेके गए ना, तो वो 10वीं बार भी एसएल वर्ल्ड में जाएगा और घूम घूम के एंजॉय करके ही आएगा। क्यों? बिकॉज कुछ भी करके उसको अपने पैसे वसूल करने हैं। ही कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट उसके पैसे कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे हैं। ओके, सो दैट इज वाई जो कंजूस लोग होते हैं, मक्खी चूस लोग होते हैं, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दे ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी दैट दे आर गेटिंग इवन फ्रॉम स्मॉल थिंग्स। छोटी से छोटी चीज से भी वो लोग क्या करेंगे, अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कहा गया है कि जो माइजर लोग हैं ना, दे आर नॉट रैशनल, उनको पागल माना गया है। उनको क्या माना गया है? पागल। तो ये जो कहा गया है कि ये जो एक्सेप्शन ऑफ माइजर है, ये कौन से असम्पशन को तोड़ रहा है? ये रैशनैलिटी वाले असम्पशन को तोड़ रहा है। नेक्स्ट, एडिक्शन। एडिक्शन होना मतलब समझता है? किसी चीज के ऊपर मतलब यू आर टू एडिक्टेड टू समथिंग, सिगरेट, दारू, ओके, चरस, गांजा, कुछ भी, ओके, इवन यू आर एडिक्टेड टू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एडिक्टेड टू वॉचिंग कार्टून नेटवर्क थ्रू आउट द डे, ओके, अगर ओवर एडिक्शन होता है किसी भी चीज के लिए, तो बाद में वो इंसान उस चीज के लिए कुछ भी कर सकता है। जो चेन स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स, वो एक ही दिन में 20-20, 25-25 सिगरेट पी जाते हैं, पर फिर भी उनका यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होता, या फिर भी उनका यूटिलिटी कभी भी डिसयूटिलिटी नहीं बनता, बिकॉज दे आर सो कंजूस। इतने कंजूस लोग होते हैं, तो उनका यूटिलिटी क्या होता है? हमेशा बढ़ते ही जाता है। ओके, सो दैट इज वाई जिनको एडिक्शन होता है, एडिक्टेड पीपल, इवन दे आर द एक्सेप्शन टू दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो इंसान भी क्या है? रैशनल नहीं होते, रैशनैलिटी। तो ये कौन से असम्पशन को ब्रेक कर रहे हैं? रैशनैलिटी वाले असम्पशन को ब्रेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, पावर। जो इंसान के पास पावर होती है ना, पावर, उनको फिर और पावर्स चाहिए, फिर उनको और पावर चाहिए, उनको जितना पावर मिलेगा ना, वो लोग की यूटिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ पॉलिटिशियन, ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ? मैं नगर सेवक था, ओके, मैं लोगों की भलाई करता था, फिर मैं यहाँ पे मेयर बन गया, फिर मैं एमएलए बन गया, फिर मैं एमपी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर मैं सीएम बन गया, सीएम बनने के बाद मुझे राज्यसभा, लोकसभा में जगह मिल गई, फिर मैं मिनिस्टर बन गया किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड का, फिर मिनिस्टर के बाद मुझे पीएम बनना था, प्रेसिडेंट बनना था। मीन्स दैट मुझे क्या चाहिए? मेरी पावर्स बढ़ती जाए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माई यूटिलिटी इज नॉट गेटिंग जीरो, बिकॉज वो जो ग्रीडीनेस होती है ना, ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर पावर, द लस्ट ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर पावर keeps increasing as and when I'm getting more and more power. Okay, so that is why people with power also, they say that they are the exception to law of diminishing marginal utility. अगर फॉर एग्जाम्पल I'm an employee in a company, तो मैं चाहूंगा आज मैं एम्प्लॉय हूं, कल मैं मैनेजर बनूं, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बनूं, फिर मैं कल सीईओ बन जाऊं डायरेक्टली। ओके, सो आई विल ऑलवेज वांट टू इंक्रीज माय पावर, एंड व्हाइल इंक्रीजिंग माय पावर, माय यूटिलिटी विल नेवर गेट डिक्रीज, एंड दैट इज व्हाई this is an exception to the law of diminishing marginal utility. तो इन लोगों को भी कहा गया, दिस पीपल आर आल्सो नॉट रैशनल, पागल लोग होते हैं, ऐसे लोग पागल होते हैं, एंड दैट इज व्हाई द लॉ डज नॉट होल्ड गुड ऑन देम। ओके, तो ये जो एक्सेप्शन है, वो कौन से असम्पशन को तोड़ रहा है? वो रैशनैलिटी वाले असम्पशन को तोड़ रहा है। नेक्स्ट इज मनी हाइस्ट। ओके, प्रोफेसर, सो फॉर मनी इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मुझे एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं तुम लोग को आज 10 रुपए दूं, नहीं लेट्स से मैं तुम लोग को आज 100 रुपए दूं, ओके, फिर मैंने तुम लोग को फिर से 100 दिया, फिर मैंने और 100 दिया, फिर 100 दिया और 100 रुपया दिया, रोज 100 रुपया दे रहा हूं। कोई ऐसा दिन आएगा जब तुम लोग बोलोगे सर आज 100 रुपया मत दो, नहीं चाहिए, यूटिलिटी नहीं मिल रहा है? ऐसा कभी दिन आएगा? देयर कैन नेवर बी अ डे व्हेन यू विल टेल मी सर पैसा नहीं चाहिए, बिकॉज नहीं चाहिए, यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। समझो आज तुम करोड़पति बन गए, फिर भी अगर मैं तुमको बोलूंगा लो भाई मैं 1000 रुपया दे रहा हूं, या 100 रुपया दे रहा हूं, 2000 दे रहा हूं, यू विल स्टिल टेक इट। व्हाई? बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नेवर बी जीरो। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं सर हमको पैसा नहीं चाहिए। अमीर से अमीर इंसान भी, ओके, मुकेश अंबानी भी क्या करेगा? ही स्टिल अर्निंग मनी। ऐसा नहीं आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, सो नाउ आई डोंट वांट टू अर्न मनी, मैं बैठ रहा हूं। ओके, रतन टाटा, उसके पास भी बहुत पैसे हैं, ओके, बट देन ही विल नॉट सिट एट होम थिंकिंग दैट बस जिंदगी में कमा लिया, अब और पैसे नहीं कमाने हैं। They are still working hard to earn more and more amount of money. Why? Because the marginal utility of money never becomes zero. कभी कम नहीं होती। इनफैक्ट जितने ज्यादा पैसे आते हैं उतने पैसे चाहिए होते हैं। I agree. In economics, the law says the marginal utility of poor people is very high.
गरीब लोग को पैसे की ज्यादा इज्जत होती है, ज्यादा कदर होती है. एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रीच पीपल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर रीच पीपल इज लो. पुअर लोग के लिए हाई और रीच लोगों के लिए लो होती है, बट इट नेवर गेट जीरो. इट नेवर गेट जीरो, एंड दैट इज वाई मनी इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. पर ये कौन से असम्पशन को ब्रेक कर रहा है? सिंगल वांट. सिंगल वांट. मुझे बताओ, क्या पैसे से कोई हम लोग सिंगल वांट होती है? पैसे से हम मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज द मनी फॉर सेटिस्फाइंग आवर डिफरेंट वांट्स. तो हमारा जो असम्पशन है दैट इज सिंगल वांट, मनी वो असम्पशन को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है. ओके. एंड द सिक्स्थ वन दैट इज ड्रंकार्ड. This drunkard is not given in our textbook. It's not given in our textbook. And drunkard is also, it also comes under this addiction part. कि जो drunkard लोग हैं, drunkard मतलब जो highly addicted लोग हैं, जिनको दारू पीना होता है, even those people are exception to law of diminishing marginal utility. This part is not given in the textbook. Okay? So अब तक हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है that there is a new law, the law of diminishing marginal utility. वो हमें क्या बोल रहा है? As and when you have more and more units, the utility will keeps getting decreasing. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, तब हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, उसके बाद और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. उसके बाद अगर एक और यूनिट कंज्यूम किया तो क्या होगा? डिसयूटिलिटी हो जाएगा. दिस एंटायर कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उसके बाद एक पॉइंट पे आएगा जब रिड्यूस यूटिलिटी हो जाएगा, जब वो एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा, तो दैट विल बी नेगेटिव यूटिलिटी. ओके. एंड दिस आर द assumptions and these are the exceptions which you have to learn very nicely and thoroughly. So now we're going to move forward to the next question, and before moving forward to that, I will have to rub the board. Yes, so let's start. The next two questions that is given to us on page number 14. It's given to us on page number 14. Criticism of law of diminishing marginal utility and significance. Okay, what is criticism? Okay, criticism का मतलब क्या होता है? देखो, कभी भी कोई भी चीज होती है तो हर कोई उसको क्रिटिसाइज करने आता है. क्रिटिसाइज में तो उसकी बुराई करना आता है कि ये चीज ऐसी नहीं है, ये चीज वैसी नहीं है. ओके. एवरीथिंग. मूवीज भी जब बनती है तो लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग उसको बहुत मोटिवेट भी करते हैं, बहुत उसकी तारीफ भी करते हैं. ओके. सो जब प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ये जो लॉ बनाया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो कुछ लोगों ने आके उसको क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने आके उसकी तारीफें की. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्रिटिसिज्म दैट इज बीन गिवन टू बाय द पीपल टू द लॉ, and what are the good things that we can learn from this particular law. The first thing, criticism of law of diminishing marginal utility, unrealistic assumption. What bullshit. लोगों ने बोला क्या फालतू की रही है, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही था, ये बुलशिट है. ओके. वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल. ओके. ऐसा लॉ कौन बनाता है? लॉ में क्या लिखा है? जैसे जैसे ज्यादा कुछ खाएंगे तो यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, यूटिलिटी कम होती जाएगी. हम पागल दिखते तो 7 मैंगो एक साथ में खा जाएंगे. आर वी सो मैड दैट आई एम गोइंग टू गो टू एसएल वर्ल्ड 7 times बैक टू बैक? ऑब्वियसली नॉट. कंप्लीटली अनरियलिस्टिक एंड बुलशिट लॉ बनाया है, कुछ भी इतना मतलब नहीं है इसका. ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है. कार्डिनल मेजरमेंट बोला है. अरे कैसे पॉसिबल है कार्डिनली मेजर करना? यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करना, हाउ इज दिस पॉसिबल? I am eating a mango. I am enjoying it. Wow, मुझे बहुत मजा आई. I went to Europe. आहा, amazing, beautiful. मजा आ गई. Okay. I was playing PUBG. शिप पक गया पूरा, बोर हो गया. मतलब 100 बार खेलने के बाद पक गया. Okay. तो basically I can say that I enjoyed a lot or I did not enjoy at all. I was having a lot of fun. I did not have fun. I can use it in such term. बट क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10 मजा आई, 20 मजा आई, 25 मजा आई, मम्मा आज खाना इतना अच्छा बनाया था कि 30 मजा आई? ऐसा हम बोलते कभी अपनी मम्मी को? ऑफ कोर्स नॉट. ओके. तो कार्डिनली मेजर कर सकती है इसको. ये तो कैसा असम्पशन था? अगेन समथिंग, इसको क्रिटिसाइज किया है, कुछ भी है लॉ के अंदर. नेक्स्ट, इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स. ये लॉ सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई करेगा जो इनडिविजिबल ऑफ गुड्स है. जैसे मैंने बताया था, जो डिविजिबल इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा. जैसे टीवी हो गई, कार हो गई, बंगला हो गया. मैं कोई 6-6, 7-7 बंगला तो एक साथ में खरीदने वाला नहीं हूं. एक यहाँ पे खरीदने की औकात नहीं, कहां 7 खरीदने जाऊंगा. ओके. तो कार हो गया, ऐसी जो चीजें, लैपटॉप हो गया, मैंने एक ही लैपटॉप खरीदा था. लॉ को चेक करने के लिए मैं पागल हूं जो 7-7 लैपटॉप खरीदने बैठूंगा. सो दोज गुड्स
विच आर इंडिविजिबल इन नेचर, उनको तो हम ये लॉ अप्लाई नहीं करता, उनके ऊपर ये लॉ जरा भी अप्लाई नहीं करता, एंड दैट इज व्हाई ये लॉ क्या है, कंप्लीटली बुलशिट है, बुलशिट. कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इवन दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, मैंने अभी बताया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ पुअर पीपल, गरीब पीपल इज वेरी हाई, उनको पैसे की बहुत कदर है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रिच पीपल है उनकी बहुत लो है, उनको पैसे की इतनी कदर नहीं होती. तो यूटिलिटी फॉर पुअर पीपल फॉर मनी इज हाई, यूटिलिटी फॉर रिच पीपल ऑफ मनी इज लो. और ये लोग ने क्या अज्यूम किया है, कांस्टेंट रखेंगे, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. ये कांस्टेंट होना पॉसिबल ही नहीं है. देखो तुम लोग मुझे 10 रुपया दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना गरीब नहीं हूं कि मेरे को 10 रुपया, तो 10 रुपए के लिए मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है. पर तुम लोग मुझे 1000 रुपए दे दो, मेरे को बहुत इज्जत है, मुझे 1000 रुपए की बहुत इज्जत है, मैं मर जाऊंगा 1000 रुपए के लिए. सिमिलरली अगर मेरी जगह आज मुकेश अंबानी होता, मुकेश अंबानी को तुम 1000 रुपए दे दो, वो देखेगा भी नहीं, वो देखेगा भी नहीं. शाहरुख खान को दे दो, वो भी नहीं देखेगा. ओके, बिकॉज फॉर रिच पीपल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वेरी लो, वेरी लो. और ये लॉ अज्यूम कर रहा है, लॉ अज्यूम क्या कर रहा है, दैट वो कांस्टेंट रहेगा, विच इज अगेन नॉट रियल. तो ये अगेन बुलशिट है. एंड लास्ट इज अ सिंगल बॉन्ड. लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन अ सिंगल बॉन्ड. देखो मैंने एग्जांपल दिया, मैं 7 बाय सिल्वर जाऊंगा, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट सो मैड. ओके, मैं 7 बाय सिल्वर नहीं जाऊंगा, वेरी ऑब्वियस. मैं 7 मैंगो एक साथ में बैक टू बैक तो नहीं खाऊंगा, इतना अमीर भी नहीं हूं और इतना पागल भी नहीं हूं. ओके, मैं 7 चीजें, मैं इतना बैक टू बैक कोई भी चीज क्यों करूंगा. 7 ग्लास ऑफ वाटर जस्ट टू सी कि मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ लॉ इन लॉ, मैं 7 ग्लास ऑफ वाटर पीऊंगा, ऑफ कोर्स नॉट. ओके, तो सिंगल बॉन्ड ऐसी कोई चीज, ये लॉ सिर्फ इसी चीज पे अप्लाई करेगा जो सिंगल बॉन्ड के ऊपर है. सो अगेन विच इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज वाई लोगों ने इस लॉ को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि दिस इज कंप्लीटली बुलशिट एंड नॉट एट ऑल यूजफुल. ऐसा लोग ने कहा है. ओके, सो दैट इज आवर वन आंसर, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बट ठहरिए, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है. नाउ वी आर गोइंग टू गो एंड सी द पॉजिटिव पॉइंट्स. तो ये भी एक्सप्लेन हो गया, ये भी एक्सप्लेन हो गया. वी आर गोइंग टू गो टू द पॉजिटिव पॉइंट्स नाउ. सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो लेट्स सी फर्स्ट, useful to the consumer. It is useful to the consumer. Let's see how is it useful to consumer. देखो मुझे अब एक बात तो पता चल गई है, that as and when if I have more and more, let's say example, as and when if I have more and more, कोई भी यूनिट में खाऊंगा तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे यूटिलिटी मिलेगी. तो मैं मैंगो भी सिर्फ 1 या 2 ही खाऊंगा बिकॉज उसमें सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी है. फिर मैं फर्स्ट और सेकंड मैंगो एप्पल ही खाऊंगा बिकॉज उसमें सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी है. सो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर विल, हम क्या करेंगे, हमारी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे और उस प्रोडक्ट में जिसमें हमको हाईएस्ट यूटिलिटी मिलेगी उसी प्रोडक्ट को हम खाएंगे. हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, कोई एकदम करोड़पति तो है नहीं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. लेट्स एग्जांपल 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए लिमिटेड है, और हमारी वांट्स, हमारी इच्छाएं तो बहुत ज्यादा है. तो मैं अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करूंगा कि मुझे हो सके उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिल सके, यूटिलिटी मिल सके. तो यस, इट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर. यूजफुल टू द गवर्नमेंट को भी बहुत यूजफुल है. इट इज यूजफुल फॉर देम टू मेक पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी. ये सारी जो पॉलिसीज होती है वो पॉलिसीज बनाने की टाइम गवर्नमेंट भी यूज करती है मार्जिनल यूटिलिटी को. प्राइसिंग, गवर्नमेंट किसकी प्राइस सबसे हाई रखेगी, ऑब्वियसली जिससे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी लोगों को उसका प्राइस ज्यादा होगा. जिससे लोगों को यूटिलिटी नहीं मिलेगी उसका प्राइस क्या होगा, एकदम कम होगा. तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इस लॉ को यूज करेगी डिफरेंट पॉलिसीज बनाने के लिए. बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. देखो इसमें 2 चीजें, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. एक होता है यूज, वैल्यू इन यूज, और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज. मतलब थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होती है जिनका यूज बहुत ज्यादा है लेकिन एक्सचेंज में कुछ वैल्यू नहीं है. थोड़ी बहुत ऐसी चीजें जिनका एक्सचेंज में बहुत वैल्यू आएगा लेकिन यूज में कुछ भी नहीं है. एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक कि वाटर हो गया, सनशाइन, एयर, हवा, इन सबका बहुत ज्यादा यूजफुल है. बिना पानी, बिना हवा, बिना सनशाइन वी कैन नॉट लिव. इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है लेकिन एक्सचेंज में कुछ मिलेगा, ले भाई मैं तेरे को थोड़ी हवा देता हूं, पैसे दे मुझे. ऑफ कोर्स नॉट. मतलब उनको हम यूज करेंगे तो हाईएस्ट यूटिलिटी, बट उसको एक्सचेंज में मनी टर्म में देखेंगे तो 0 रुपीज, कुछ भी नहीं हो रहा है, फ्री में मिल रहा है. ओके, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम एयर.
गिव मी अनदर चांस। वैल्यू इन एक्सचेंज, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, उनके एक्सचेंज वैल्यू में बहुत हाई, एकदम 10 तोला सोना 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, ऐसा हो रहा है। ओके, बट अगर तुम देखोगे उनका यूज क्या काम है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, हम फिर भी जी पाएंगे बिना गोल्ड के, बिना डायमंड के, आई कैन स्टिल सर्वाइव। तो वैल्यू इन यूज जो सनशाइन वगैरह, उनको यूज बहुत हाई है, बट वैल्यू इन एक्सचेंज जीरो। और वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उनका काम कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, और उनका एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज मतलब ये चीजें यूटिलिटी फाइंड आउट करने में, हाई यूटिलिटी बट एक्सचेंज वैल्यू नथिंग, लो यूटिलिटी बट एक्सचेंज वैल्यू वेरी हाई, उसके उन लोगों ने क्या किया, डिस्टिंग्विश किया है। एंड फाइनली बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मैं सिर्फ वही और वही चीज डिमांड करूंगा जिससे मुझे यूटिलिटी मिलती है। आई नेवर गो टू अ पान शॉप टू बाय सिगरेट्स, और आई नेवर गो टू अ वाइन शॉप टू बाय लिकर। व्हाई? बिकॉज आई डू नॉट गेट एनी यूटिलिटी, जीरो यूटिलिटी। तो कोई यूटिलिटी नहीं मिलती तो मैं वो चीज की डिमांड नहीं करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को अप्लाई करता हूं। मुझे पता है मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, ओके, मुझे बहुत यूटिलिटी मिलती है भिंडी की सब्जी से, तो मैं जाके भिंडी की सब्जी डिमांड करूंगा। मुझे पता है मुझे करेले की सब्जी नहीं पसंद, तो क्या मैं करेले की सब्जी डिमांड करूंगा? मैं करेले की सब्जी डिमांड नहीं करूंगा। तो बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि उसी चीज की डिमांड करो। मैं इस लॉ को हेल्प से, इस लॉ की हेल्प से मैं चीजें क्या करूंगा, डिमांड करूंगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल गेट टू नो। Okay students, so now moving forward to the last part of this entire chapter. So moving forward to the last part of this entire chapter, I'll just switch on the slide once. Yes, so now coming with the last part of this chapter, हम लोग को last part, that is page number 15 of this particular chapter, हम लोग को बताया गया है that the relationship between price and marginal utility. तो हम लोग को एक टेबल दिया गया एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उन दोनों का रिलेशन कैसा है, इज द रिलेशनशिप गोइंग फाइन और नॉट, विल सी दैट राइट नाउ। अच्छा, अगर मुझे एमयू को प्राइस से कंपेयर करना है तो मुझे एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। मैं अज्यूम करूंगा कि एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, यू कैन सी दैट हियर, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, 1 यूनिट को मैं अज्यूम कर रहा हूं ₹10। ऑब्वियसली पूरा लॉ ही एक अजम्पशन के पे चल रहा है, तो यहां पे भी मैंने अज्यूम किया, मैंने क्या अज्यूम किया है, दैट माय एमयू व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट विद मनी, तो माय 1 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 10 रुपीज। ओके, तो समझो मैंने यूनिट 1 खाया, दैट इज मैंगो, तो मुझे 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं मनी टर्म में देखूंगा तो मुझे 100 रुपए तक की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। मैंने फर्स्ट मैंगो खाया और मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, 100 रुपए तक की मार्जिनल यूटिलिटी मिली, और उसका मार्केट प्राइस क्या था, यूनिट 1 का मैंगो का मार्केट प्राइस क्या था, 50 रुपया। 1 खरीदू तो भी 50, 2 खरीदू तो भी 50, 3, 4, 5, 6, 7, जितना खरीदू उतना मुझे कितना मिलने वाला है, 50 रुपए का मुझे मैंगो मिलेगा। 1 मैंगो इज इक्वल टू 50 रुपीज इन द मार्केट, ओके। बट 50 रुपया देने के बाद मुझे कितना यूटिलिटी मिला, 100 यूटिलिटी मिला। वाओ, दिस इज सो गुड। दूसरा मैंगो खाया, 50 रुपया दिया, लेकिन यूटिलिटी कितना मिला, 80 रुपीज तक का यूटिलिटी मिल गया। इतना यूटिलिटी मिला कि 80 रुपया भी देता तो भी चल जाता, इतना यूटिलिटी मिल गया। थर्ड मैंगो खाया तो मुझे कितना यूटिलिटी मिला, दिया 50 रुपया, लेकिन मिला कितना, 70 रुपीज तक का यूटिलिटी मिला। सो फोर्थ मैंगो जब मैंने खाया तो 50 रुपए का मेरे को यूटिलिटी मिला और 50 रुपया मेरा स्पेंड हुआ, तो दैट इज फाइन। टिल द यूनिट 4 अ कंज्यूमर विल गो एंड बाय द यूनिट, बिकॉज उसको जो मजा आ रही है उसके सामने जितना पे कर रहा है दैट इज लेस और इक्वल, ओके। तो हमेशा कंज्यूमर क्या करता है, हमेशा कंज्यूमर यही चाहता है कि कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा मजा मिल सके, ओके। बट जब अगर समझो उसने सपोज उसे 5th मैंगो खरीदा, 50 रुपया स्पेंड किया, लेकिन सिर्फ 30 रुपए तक का ही मजा आया, ज्यादा मजा नहीं आ पाया। एंड जब 6th मैंगो लिया उसने, स्पेंड 50 रुपया किया, बट उसको मजा सिर्फ 10 रुपए तक का ही आया। यू कैन अज्यूम, एसएल वर्ड भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, तो जितना स्पेंड किया उससे ज्यादा मजा आया, वेरी नाइस। लेकिन अगर वापस जाएंगे ना तो खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन मजा तो कुछ भी नहीं आएगा, तो दिस पार्ट वेयर माय एमयू इज मोर देन माय प्राइस, इज कॉल्ड एज, इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, इसको इंट्रा मार्जिनल यूनिट बोलेंगे। 1, 2 एंड 3, जहां पे मेरा एमयू इज मोर देन प्राइस, इट विल बी कॉल्ड एज, इस यूनिट को क्या बोलेंगे, इस यूनिट को बोलेंगे इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। The place where my marginal utility is equal to my price, it will be called as
इट विल बी कॉल्ड एज परफेक्ट मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्ट मार्जिनल यूनिट है। ये यूनिट कैसा है, मार्जिनल यूनिट, एकदम परफेक्ट इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यहां तक कंज्यूमर क्या करेगा, यहां तक परचेज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, दैट इज मार्जिनल यूनिट। और यहां इन दोनों को बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। ओके, इंट्रा का जो ऑपोजिट है एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट, इन दोनों को हम बोलेंगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको हम परचेस करेंगे नहीं, बिकॉज हम लोग को मजा ही नहीं आ रही है। आई गेस हाँ, एक्स्ट्रा। सो दिस इज व्हाट द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और इस यूनिट को हमें लर्न करना है दैट द मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर, तो उसको इंट्रा मार्जिनल यूनिट बोलेंगे और मार्जिनल यूनिट बोलेंगे, और अगर कम हुआ तो एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट बोलेंगे। ओके, so this is how the entire chapter of utility analysis is. इस चैप्टर को क्या करना है, प्रॉपरली आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच सम, ईच पर्टिकुलर क्वेश्चन, तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को समझना है। यू हैव टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर। एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं, प्लस द एग्जाम्पल दैट आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल, तुम लोग उसको भी नोटबुक अच्छे से लिख सकते हो। ओके, all the questions that is given in the textbook, fill in the blanks, one word, match the following, you have to solve them. If you have any doubt, you can always ask us, and we will be taking your test regularly. So as soon as you see the video, you have to start learning question and answers, and you have to learn them properly, nicely. It is going to all come in your board exam for 10 marks. So all the questions are really very important, and the entire chapter is really very important from your board exam point of view. Okay, so we will meet very soon. Hope you are having a great time. Okay, thank you so much.